indicated 6 charter points in this memorandum, which is I am going to give to Honorable Prime Minister, Honorable Excellency President, and Honorable Home Minister, and Honorable Chief Minister Uttar Pradesh Sarkar, Honorable Chief Minister Assam Sarkar, Honorable Chief Minister Uttarakhand Sarkar, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, and these are the I have already presented. That's out of this memorandum, 6 agendas are there. Number 1 agenda regarding MCC. My agenda, because MCC is the main backbone to conversion of the religions from Hindu to Christian at Nepal, which was passed, introduced in the bill. This is one of the INGO, international non-government organizations, how they have been implemented there, and how they have been introduced in the Nepal government by himself as a partner. This is one of the Rukana for the country, and one of the dangerous, they are putting in the dangerous position for the country. That's why I want to draw. Number 2 agenda, in the name of national identity, they are changing, opening all the ornaments, sindurs, Mangal Sutra, whatever for women, and our cap, our dress, we cannot do. Like a Christian, we have to take the photograph and they will make the identity. That identity card only will be valid, not other than that. That means citizenship finished. Government identity card vanished. Everything has been vanished by the Nepal government. That's why I want to be intervened that it should not be implemented at Nepal, that MCC, this national identity. Number 3 agenda, they have passed, if they are parliamentary, and if according to now questions has been a very big issue for the country, whether we'll accept parliamentarian or we'll accept constitution of Nepal. That is a 2 questions. How we'll take up the issue? That is the confusion involved. Now we have to send the jail all the parliament of Nepal who has introduced the bill according to the provisions of the constitution of Nepal. Article 26, subsection 3 is implemented, applicable for to them to put the jail. That is the provision. Otherwise, if we will not respect to the constitution of Nepal, then general public will respect to the politician. Question does not arise. We should throw out them through the constitution if it is implemented really according to provisions of the democratic process. Then they should be suspended with the provisions of Article 26, subsection 3, which is applicable and which is written in the Constitution of Nepal. That is my question. Number 4. Now, 26 cabinet ministers, led by KP Oli, corrupted leader, gone to the China and made the one agreement. And no one go and will go and sign there in the other country agreement between whatever agreement made between 2 countries. That's why such things they have done. 26 ministers gone, they have made the agreement and made the development of the roads, development of the tunnel. This agreement has been made by this KP Oli last couple of days. That is one of the great issue and great questions of security for the country, security for the religious, security for the survival of the youth of the Nepal. That is my question. Number 4, 5, come. They have implemented one of the scheme, that nationalism, and whatever they have made the agreement, they have signed it MOU with the price. That means indirectly they have sold the country. That's why how you can believe. आप लोग कैसा हम इनको विश्वास कर सकते हैं, कैसा हम इनको नेता मान सकते हैं? काम तो सारा दलाली का किया है। आज तक डिप्लोमेट का कोई काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं किया, जनता का कोई काम नहीं किया, देश से लिए कोई काम नहीं किया। डिप्लोमेटिक डायलॉग कैसा करना है, किस टाइप में करना है, किस लेवल में करना है, उसको नहीं किया। सीधा आके बोलता है पैसा दो साइन करूंगा, और कहाँ साइन करना है जगह बताओ। These are the factors of the Nepal politician. और अपने उन लोग ने खुद ही पार्लियामेंट में 2 में हमने संविधान लेके आए बोलते हैं, और वही 2 में ओम शब्द हटाता है। तो इसका मतलब एंटी रिलीजियस है, एंटी हिंदू है। तो इन लोगों को नेपाल में रहना क्या दिया जाए? न इन लोगों को नेपाल से बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए हमारा एजेंडा सरकार, भारत सरकार को मैंने ये कहा है मेमोरेंडम में, 506 में है ये। इस तरीके से ये लोग देश बेचने में जाते हैं, तो भारत के साथ हमारा क्या है?
भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा संस्कार का रिश्ता है, और हमारा खान पान मिलता है। भारत में भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, सब हम लोग एक बोल के भारत क्यों कब्जा नहीं कर रहा है? कर ले भारत हस्ताक्षर, कर ले भारत ले, और राज्य दे दे, नेपाली राज्य दे दो, नेपाल राज्य नाम से, नेपाल नाम ना बिठाए। ये मैंने आज साफ शब्दों में इसीलिए मैंने ये दिया है मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी को, मैंने दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रपति को। और क्योंकि ये मेन पिलर यही है देश में अभी, मोहन भगत जी, ये सब 8-10 जो है मेन पिलर है, ये मेन पिलर को मैंने ये बनाया है, ये ज्ञापन इनको मैं देना है। As you said, you are the member of the UNO, and what is your stand by the what is your face? पुलिस से दर नहीं कर रहा है, कागजों से कर रहा है। और जैसा एक बिल आया, जो बिल था आपका ओम शब्द, जो ओम शब्द मेन शब्द माना जाता है संस्कृत में, क्योंकि आज हम एक हिंदू लीडर नेता होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम शब्द हटाने से तो बचा क्या, उसका रीट तोड़ दिया और पार्लियामेंट में पारित किया गया है, और वो संविधान के खिलाफ पारित किया गया है। संविधान में बोलता है धारा 26 स्वतंत्र प्रभाव से रिलीजियस इंडिपेंडेंस एक्ट ये लोग ने लाया, और उपधारा 3 में लिखा है अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, दंडनीय होगा। तो सांसदों ने खुद ही किया, तो अब सांसद माना जाए ना संविधान माना जाए ना इनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये 3 मुद्दा बना हुआ जटिल मुद्दा है, और इस तरीके का सांसद को हम क्या सांसद माने, ना इनको हमने आज संविधान को माने, ना हम जनता को माने। यहाँ 3 मुद्दा बना हुआ है, ये आप लोग विचार विमर्श करिए और सोचने का समय है। और दूसरा, एक एनजीओ 1860 एक्ट का एनजीओ धर्म परिवर्तन कराने के हेतु एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एक बिल एनजीओ को लेके आके नेपाल में ये लोग ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और नेपाल सरकार साथ सहभागी बनाया। और नेपाल सरकार का जनता का जो आया है, जो पैसा आता है, जनरेट होता है रेवेन्यू में नेपाल गवर्नमेंट, उसका 25% एनजीओ को दिया जाएगा, एमसीसी को दिया जाएगा। और एमसीसी वो हिसाब देने का कोई जरूरी नहीं है, हिसाब भी नहीं देगा एमसीसी, उसको कुछ नहीं करेगा, वो जैसा ये चाहेगा वैसे ही करेंगे, ऑडिट देने का जरूरत है। इस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सारा नेता एक हो गया, दरवाजा बंद करके पास कर दिया। और 3 नंबर में आइए, उसी तरीका से आज एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार, ये सारे चैनल, ये सबको बंद करने के लिए बिल पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है, विधायक पेश किया गया है, वो अभी चल रहा है, पास नहीं हुआ है अभी, उसमें चर्चा और इन लोगों का मंथन चल रहा है। कल उपेंद्र यादव को बुलाया केपी ओली ने, और शेरबाबू देवबा, केपी ओली का 2/3 बहुमत है, और उसके बाद उपेंद्र यादव को देके 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए। इसलिए उपेंद्र यादव को आगे कोई ये लोग ने अपना एक संघर्ष करके और जनता से लूट के उसको पैसा दे के वो मेरा समर्थन में आओ बिल पास किया जाए बोल के गया। काल ये लोग का चर्चा चल रहा था, तो उसी चर्चा के बीच में हम एक सम्मेलन करने की आवश्यकता समझा, ये जरूरत समझा, क्योंकि आज किस तरीका से अंधेरे में जनता को रख के ये लोग बिल पास करके देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, आप लोग को सोचने का समय है। तो इसीलिए ये बिल रोकने के लिए हमने यहाँ प्रेस करने किया, आप लोग का सहायता विचार आवश्यकता है, आप लोग का मदद की आवश्यकता है, और आप लोग इसको आगे तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूं कि इसको आगे आप लोग ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग प्रहार करते जा रहा है एक से दूसरा देश, तो इस तरीके से तो देश नहीं बचेगा। ना नेपाल नाम जुड़ा हुआ है संस्कृत से। समुद्रगुप्त मौर्य जब फर्स्ट राजदूत हिंदुत्व का बने थे, उन्होंने एक वेद में लिख के गया, नेपाल एक संस्कृति नाम है, नेपाल नाम नहीं मिटा सकते। तो उसका ये लोग खत्म करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए बिल पास। और तीसरा, ये आप एक राष्ट्रीय परिचय, नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल लेके आया, और वो जो रवि लामचंद अभी जो उसके पीछे जो लाग रहा है, रवि लामचंद आप लोग सुने होंगे, रवि लामचंद अभी चर्चित में है, चर्चा में है नेपाल में। उसने क्या किया है, 1200 करोड़ में डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेन से कॉन्टैक्ट लिया, उसके बाद में उसको नेपाल में इंट्रोड्यूस करना है। 31 मार्च तक इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके सबको, जैसे ओम शब्द हटाया, अब हिंदुत्व का इम्पोर्टेंट खत्म कर दिया, अब उसको लेके आएगा। अभी जिसका सिटीजनशिप है, जिसका ऑल नागरिक है, ऑल आइडेंटिटी है, और डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी, उसका बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी बोल के एक बिल आया, और 16 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक नेपाल से लोन लिया,
1200 करोड़ रुपया जो बाइडन ने दिया डॉलर में, जैसे एमसीसी में दिया 55,000 करोड़ रुपया एमसीसी पास किया घुस खा के, तो इसमें भी ये लोग ऐसा घुस लेकर उसको पास करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको जबरदस्त इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है कि अगर नेशनल आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो यहाँ रहने नहीं सकेगा। तो इस तरीके से लोग फोर्सफुली जनता को दबाकर, जनता को डराकर, जनता को धमकाकर इस तरीके से ये लोग आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। और उसमें क्या क्या कंडीशन है, जो शादीशुदा हुआ हमारा देवियाँ है, माताएं हैं, सब जो भी है, बहन है, उनका सिंदूर नहीं लगा सकते जब फोटो खींचेंगे आइडेंटिटी का। 1 नंबर कंडीशन। 2 नंबर कंडीशन, चूड़ी नहीं लगा सकते, चूड़ी को निकाल देना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। 4 नंबर, तिलक नहीं लगा पाएंगे। 5 नंबर, पेंट शर्ट पहन के, साड़ी छोड़िए तो ड्रेस तो पोशाक तो छोड़िए, पेंट और शर्ट पहन के फोटो खिंचाना पड़ेगा, वो बनेगा राष्ट्रीय परिचय महिला के लिए। और पुरुष के लिए टोपी नहीं, ऐसे टोपी नहीं लगा सकता, ये तो राष्ट्रीय पोशाक है और राष्ट्रीय पोशाक ड्रेस नहीं पहन सकता है, तो वो भी पेंट शर्ट नहीं, बिना तिलक ये खींचना पड़ेगा। तो ये कराने वाला रवि का अगुवाई में जब गृह मंत्री बना थोड़ा दिन के लिए, उसने 1200 करोड़ में ठेका लेके ये काम कराया इन लोगों के साथ। और जनता को बोला क्या, ये तो पहले कांग्रेस एमएलए पास कर चुका था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो मैं नहीं देखूंगा। देखिए जहाँ पैसा लेना होगा इस तरीके से जनता को बोल रहा था, और उधर में बोलता है इन लोग को मैं पास कर दूंगा। तो इस तरीका दोखलापंथी, इस तरीके का दोहरा चाल, इस तरीके का जनता का ऊपर हत्या, डायरेक्ट हत्या है, इनडायरेक्ट हत्या है। डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं। जो सड़क में आएंगे उनको डायरेक्ट हत्या कर रहा है और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, कागज में कर रहे हैं। तो कैसा देश बचेगा? ना नेशनलिज्म रहेगा, ना सिक्युलरिज्म रहेगा, ना सिक्योरिटी रहेगा, ना आइडेंटिटी रहेगा, ना आपका सर्वाइवल रहेगा। कोई आदमी सर्वाइव कर पाएगा? और 1 साल में 20 लाख युवा बाहर विदेश जा रहे हैं। भारत में हमें 18 लाख नेपाली है, दिल्ली में ये काम करते हैं, BA में पास है, काम नहीं है, वेटर करेंगे, कुछ करेंगे, इस तरह का ये माहौल बना हुआ है। सर, 2021 की जनगणना के अनुसार 81.90% जो है वो हिंदू है वहाँ पर, हाँ बताओ। फिर भी वहाँ पर जो है